मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने आज पार्लियामेंट में साल 2023-24 का बजट पेश किया। निर्मला सीतारमण ने बजट तकरीर में कहा कि हुकूमत जम्मू कश्मीर, लद्दाख और शिमाल मशरक पर खास तवज्जो दी है, लेकिन जम्मू कश्मीर के बजट में कोई इजाफा नहीं किया गया। The government's philosophy of Sabka Saath, Sabka Vikas has facilitated inclusive development covering in specific farmers, women, youth, OBCs, scheduled castes, scheduled tribes, Divyangjan and economically weaker sections, and overall priority for the underprivileged. Vanchiton ko variyata. There has also been a sustained focus on Jammu Kashmir, Ladakh and the Northeast. This budget builds on those efforts. सरकार ने इनकम टैक्स के न्यू रेजिम में तब्दीली की है। इनकम टैक्स में छूट दे दी है। टैक्स छूट को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है। Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. The second proposal relates to middle class individuals. I had introduced in the year 2020 the new personal income tax regime with 6 income slabs starting from 2.5 lakh. I propose to change the tax structure in this regime by reducing the number of slabs to 5 and increasing the tax exemption limit to 3 lakhs. The new tax rates are 0 to 3 lakh, nil. 3 to 6 lakhs, 5%. 6 to 9 lakhs, 10%. 9 to 12 lakh, 15%. 12 to 15 lakh, 20%. And above 15 lakhs, 30%. This will provide major relief to all taxpayers in the new regime. An individual with an annual income of 9 lakhs will be required to pay only 45,000 rupees. This is only 5% of his or her income. It is a reduction of 25% on what he or she is required to pay now. That is 60,000. So in the place of 60,000, it is now only 45,000. Similarly, an individual with an income of 15 lakh rupees would be required to pay only 1.5 lakh or 10% of his income or her income, a reduction of 20% from the existing liability of 1,87,500 rupees. My third proposal is for the salaried class and the pensioners, including family pensioners, for whom I propose to extend the benefit of standard deduction to the new tax regime. Each salaried person with an income of 15.5 lakh rupees or more will thus stand to benefit by 52,500 rupees. My fourth announcement in personal income tax is regarding the highest tax rate, which in our country is 42.74%. This is among the highest in the world. I propose to reduce the highest surcharge rate from 37% to 25% in the new tax regime.
This would result in reduction of the maximum rate. This would result in the reduction of the maximum tax rate to 39%. Lastly, the limit of 3 lakh rupees for tax exemption on leave encashment on retirement of non-government salaried employees was last fixed in the year 2002, when the highest basic pay in the government was only 30,000 rupees per month. In line with the increase in the government salaries, I am proposing to increase this limit to 25 lakh rupees. We are also making the new income tax regime as the default tax regime. However, citizens will continue to have the option to avail the benefit of the old tax regime. आम बजट को अमृत काल का पहला बजट बताते हुए पीएम मोदी ने इसे गांव, गरीब और किसान का बजट बताया। वजीर आजम ने कहा कि बजट ख्वाबों की तकमील का बजट है। वजीर आजम ने बजट पर वजीर खजाना को मुबारकबाद दी। अमृत काल का ये पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। ये बजट वंचितों को वरीयता देता है। ये बजट आज की एस्पिरेशनल सोसाइटी, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग सभी के सपनों को पूरा करेगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला जी और उनकी टीम को इस ऐतिहासिक बजट के लिए बधाई देता हूं। साथियों, परंपरागत रूप से अपने हाथ से औजारों और टूल्स से कड़ी मेहनत कर कुछ न कुछ सृजन करने वाले करोड़ों विश्वकर्मा इस देश के निर्माता है। लोहार, सुनार, कुम्हार, सुथार, मूर्तिकार, कारीगर, मिस्त्री, अनगिनत लोगों की बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। इन सभी विश्वकर्माओं की मेहनत और सृजन को देश इस बजट में पहली बार अनेक प्रोत्साहन योजना लेकर के आया है। ऐसे लोगों के लिए ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, क्रेडिट और मार्केट सपोर्ट की व्यवस्था की गई है। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान यानी पीएम विकास करोड़ों विश्वकर्माओं के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। साथियों, शहरी महिलाओं से लेकर गांव में रहने वाली महिलाएं हो, कारोबार, रोजगार में व्यस्त महिलाएं हो या घर काम में व्यस्त महिलाएं हो, उनके जीवन को आसान बनाने के लिए बीते वर्षों में सरकार ने अनेक विविध कदम उठाए हैं। जल जीवन मिशन हो, उज्ज्वला योजना हो, पीएम आवास योजना हो, ऐसे अनेक कदम। इन सबको बहुत बड़ी ताकत के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। उसके साथ साथ महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप एक बहुत बड़ा सामर्थ्यवान क्षेत्र आज भारत में बहुत बड़ी जगह अपने हाथ एक्वायर कर चुका है। उनको अगर थोड़ा सा बल मिल जाए तो मिरेकल कर सकते हैं। और इसलिए वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप उनके सर्वांगीण के विकास के लिए नई पहल इस बजट में एक नया आयाम जोड़ेगी। महिलाओं के लिए एक विशेष बचत योजना भी शुरू की जा रही है और जनधन अकाउंट के बाद
ये विशेष बचत योजना सामान्य परिवार की गृहिणी माताओं बहनों को बहुत बड़ी ताकत देने वाली है। ये बजट सहकारिता को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास की धुरी बनाएगा।
फिर अपनी पार्टी के सूबाई सरबराह सरदार मंजीत सिंह का कहना है कि हुकूमत अब साबिक हुकूमतों की तरफ से आवाम को दी गई घास चराई और सरकारी जमीन छीन रही है। हुकूमत आवाम की तवज्जो हकीकी मसाइल से हटा रही है, जबकि महंगाई और बेरोजगारी के मामले पर हुकूमत कुछ नहीं कह रही है। सांबा में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के ज़ेर-ए-एहतमाम मुनक्किदा वर्कर्स मीटिंग में आवाम को दरपेश मसाइल को उजागर किया गया। ये लोगों का असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। असली मुद्दे बेरोजगारी के हैं, असली मुद्दे महंगाई के हैं, असली मुद्दे रिश्वतखोरी हैं, जिसपे ये सरकार कुछ नहीं कर रही। अलबत्ता लोगों का ध्यान बटाने के लिए ये जो है गरीब लोगों को तंग कर रही है। लोग इसका जवाब जब भी चुनाव होगा, इसलिए तो ये चुनाव नहीं कर रहे, इसलिए तो ये डर रहे हैं कि हमारी नीतियां लोगों के खिलाफ हैं, हम चुनाव में जाएंगे किस मुंह के साथ। लेकिन अल्टीमेटली इनको चुनाव कराना पड़ेगा और उस वक्त लोग ये जो आज गुंडागर्दी एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, इसका जवाब लोग वोट डाल के देंगे। बानिहाल काजीगुंड 4 लेन टनल की देखरेख के कामों के लिए मकामी बेरोजगारों को नौकरियां फराहम करने में नजरअंदाज करने के खिलाफ बानिहाल के गुंड ठठार के लोगों ने एहतजाजी मुजाहरे किए और कंपनी और इंतजामिया के खिलाफ नारे बुलंद। लोगों का कहना है कि उन्होंने टनल प्रोजेक्ट के लिए अपनी जमीनें दी है, लेकिन रोजगार के मामले में उन्हें यकसर नजरअंदाज किया गया है और दूसरे इलाकों से लाकर लोगों को यहाँ नौकरियां फराहम की जा रही हैं। दूसरी जानिब मुतल्लिका कंपनी के अहदेदारों का कहना है कि मकामी लोगों को 95% नौकरियां दी गई हैं और गुंड पंचायत से 36 अफराद को मुलाजिमत दी गई है। ये प्रोटेस्ट करने पर मजबूर हो गए हैं क्योंकि इन्होंने परसों एक लिस्ट निकाली है जिसमें इन्होंने कम से कम तकरीबन 15 से 20 बंदे एडजस्ट किए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपील करते हैं कि जो ये लिस्ट इन्होंने निकाली है ये किस बेस पे निकाली है, आप भी जरा इस पे गौर कीजिए। और जो हमारे गोंड के भाई हैं जो बेरोजगार बेचारे हैं, जिनके पीछे आयाल है, जो अभी 1 रुपए भी नहीं कमा सकते हैं, पहले प्रेफरेंस तो यहाँ के गोंड के भाई को मिलनी चाहिए। आपके माध्यम से ये बात एलजी साहब तक पहुंचाओ और हाई अथॉरिटीज तक पहुंचाओ। अगर आपके मसाइल नहीं सुने गए, इन्होंने आपको नहीं एडजस्ट किया तो क्या करेंगे आप लोग? हम मजबूरन बच्चों के समेत बीवी के समेत इधर प्रोटेस्ट करेंगे और तब तक नहीं हटेंगे कि जब तक हमारे मामला हल न किया जाए। वाहिद हमारा प्रोजेक्ट है जिस प्रोजेक्ट में 100% जो है एम्प्लॉयमेंट लोकल्स है। एवं कि मैं खुद एक लोकल हूँ। बहुत कम देखा होगा कि एचआर एडमिन की कुर्सी पे कंपनी मुंबई की हो और एचआर एडमिन की कुर्सी पे लोकल का बंदा बिठाया हो। आप वहीं से पता कर सकते हो कि इस कंपनी की क्रेडिबिलिटी क्या है। पुंछ जिला की तहसील मंडी के गांव सथरा के लोगों ने 2 माह से राशन न मिलने पर बरहमी का इजहार करते हुए महकमा फूड एंड सप्लाईज के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजियों ने कहा कि गुज़श्ता 2 माह से राशन नहीं दिया गया। इस सर्दी में भी आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। उन्होंने शिकायत की कि दुकानदार पाबंदी से दुकान पर नहीं आता है। मुजाहिरीन ने महकमा फूड एंड सप्लाईज के आला हुक्काम से मामले की तहकीकात करने और लोगों को राशन फराहम करने का मुतालबा। अथरा ब्लॉक में ये एक सजा दी गई है। डीलर जो फूड सप्लाई का डीलर है, इसने 30 दिन हो गए आज दिन तक राशन नहीं दिया और सुबह से लेकर सर्दी के मौसम में ये सजा काट रहे हैं। कोई बच्चों वाली औरतें जो हैं वो जहाँ नहीं खड़ी हो सकती और इतनी सजा दी गई है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से राशन हमको नहीं आ रहा है पीछे से तो हम नहीं मांगते। अगर ये राशन गवर्नमेंट ने दिया है तो ये फूड सप्लाई को पूरा एक्शन किया जाए ताकि ये इन लोगों को सजा क्यों दी गई। इनको इस जनवरी के महीने में भी राशन नहीं मिला। ये इन्होंने एक डीलर तिमरा में, चैकत्रो में, गली पिंडी जंद्रोला में, यहाँ साथरा में ये एक डीलर तैनात किया हुआ है कि इन लोगों की तरफ देखा जाए, इनके ये मसले हल किए जाएं, इनको राशन दिया जाए। ये बंदे आन गया पूरा दिन ऐसा बैठे रहने, ऐसा राशन नहीं मिलना ना कुछ। बड़े दूर दूर से लोग पैदल आए हुए हैं, बर्फबारी है, बर्फ का मौसम है, तो हम कहाँ जाए सर, हमारी कोई सुनाई नहीं दे। तहसीलदार साहब को भी हमने 3-4 फोन किए, उन्होंने फोन नहीं उठाया, हमें राशन नहीं मिला। गुज्जर बस्ती गुलशनपुरा त्राल के लोगों ने बस स्टैंड त्राल के इलाके में राब्ता सड़क की खस्ताहाली को लेकर एक खामोश एहतजाज किया। मकामी लोगों का कहना था कि साल 2018 में इलाके को मॉडल ट्राइबल विलेज का दर्जा दिया गया था, ताहम इलाके की राब्ता सड़क पर अभी तक कोई तामीराती काम शुरू नहीं किया गया है, जिसकी वजह से मकामी आबादी को सख्त मुश्किलात दरपेश है। मकामी लोगों ने एलजी इंतजामिया से सड़क की तामीर के मामले में मदाखलत करने की अपील की है। गुलशनपुरा से गुजर बस्ती की ओर जाता है। 2000 में वो रोड बना है, 2000 से लेकर आज तक उसकी कोई मरम्मत नहीं हुई, जबकि
पिछले साल भी हम इनके पास गए, डिपार्टमेंट वालों के पास, बोला होगा आज होगा कल होगा, लेकिन पिछले साल भी नहीं हुआ। अब इस साल के लिए बोला था कि आज होगा, लेकिन जब हमने देखा है तो प्लान में भी हमारा कहीं नहीं है, उसमें हमारा नहीं नजर आता है। उन्होंने हमारे रोड को इग्नोर कर दिया। पिछले 2000 से हम ठोकरे खाते फिर रहे हैं, दफ्तर हर किसी दफ्तर में जाते हैं, लेकिन हमारी सुनाई कहीं नहीं होती। हमारे बुजुर्गों को प्रॉब्लम हो रही है, हमारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। हमारा भी यही ख्वाब है कि हमारे बच्चे भी किसी अच्छे स्कूल में पढ़े, लेकिन जब किसी गाड़ी वाले को बोलते हैं कि इधर आके इनको ले जाओ स्कूल, कोई वहाँ पे नहीं आता है, क्योंकि वजह यही है जो रोड वहाँ पे ठीक नहीं है। तो कई बार हमने यहाँ से जो हमारा एडीसी साहब है त्राल का, इनसे भी ये मुतालबा उठाया। उन्होंने पिछले 2-3 सालों से ये बोल रखा कि इस प्लान में हो जाएगा, इस प्लान में हो जाएगा। कल हमने जब ये प्लान उन्होंने कुछ निकाला था वो देखा हमने, तो हमारा उस प्लान में भी नहीं। हमारी यही गुजारिश है कि हमारी इस रोड को मैक्सिमाइज किया जाए ताकि हम भी राहत की सांस ले सकें। संभल सब डिस्ट्रिक्ट के खुसरपुरा गांव के लोगों ने बुनियादी सहूलियात के फुकदान पर एहतजाजी मुजाहरा किया। इलाके के दर्जनों लोग सब जिला हेडक्वार्टर संभल में जमा हुए और मुतल्लिका इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों ने इलाके में बिजली और पीने के पानी की फराहमी जैसी बुनियादी सहूलत की कमी की शिकायत की है। उन्होंने हुकाम पर इलाके को नजरअंदाज करने का भी इल्जाम लगाया। लोगों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और डीसी बांडीपुरा से उनके जायज मुतालबात को पूरा करने की अपील की है। जनाब काल पक उमन बत 10 वरी वन दियो नो ट्रांसफर जहात के यह सोन लोड हेका कहीं टोटल बस योत सोन डिमांड सोन डिमांड ट्रांसफार्म सोन ये गो मुबारक अति वापस जरूरत इसका दिन वालो वन लागो या सुबह 10 बजे बे दोदमुत क्या फायदा कर मुतालबा दीतो जनाब दोप लैंड वैंड वगैरह वो हीत तो दिख यजपर चीज तम सात वोक दिमो तुम गरा वोक दिमो शांच पाइप तुम अलग शांच पाइप गरा वोक 5 वस वन दिमो 3 आंच पाइप महल नो बन तथ मे गर 8-10 वस बसान तथ मे नो महल बन पाइप लाइन 3 आंच दिन सह करवा इस्तेमाल कि सह कर तम इस्तेमाल यह सोन मुतालबा। जिला कुपवाड़ा के सयाहती मकाम दरंगियारी बंगस में 3 रोज़ा विंटर कार्निवल फेस्टिवल अख्तिताम पजीर हो गया। इस मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक्किद किए गए थे। सयाहों के साथ साथ मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा और तालिबात ने बर्फ की पेंटिंग बनाई। बच्चों ने मुल्क के सयाहों से जिला कुपवाड़ा के वादी बंगस और दरंगियारी सयाहती मकाम का दौरा करने, दीगर लोगों को तरगीब देने की अपील की। नाज़रीन, आज हम खूबसूरत वादी यानी कि दरंगियाड़ी बंगस में मौजूद हैं, जहां पर 3 रोज़ा विंटर कार्निवल का बाज़ाब्ता इनेकाद। कई बेटियां हमारे साथ हैं इस वक्त जो हमारे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पंजगाम से हैं। उन्होंने भी आज इसका मजा लिया, लुत्फ लिया। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे क्या क्या खास यहाँ पर आपने देखा और क्या चीजें बनाई आज आप। जी, मेरा नाम फरीदा सुल्तान है। हम गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल पांचगाम से हैं। हमें यहाँ पर आकर बहुत ही हमने एंजॉय किया, मतलब पेंटिंग्स बनाए, बहुत एंजॉय किया। मतलब इतना हम मतलब इंडिया से बाहर गए, इतना एंजॉय कहीं नहीं किया जितना हमने यहाँ पर टीपी में आकर एंजॉय किया। तो आप चाहते हैं कि जिस तरह 3 रोज़ा विंटर कार्निवल का इनेकाद हुआ, क्या आप चाहते हैं कि इस खूबसूरत वादी में मजीद इस तरह के इकदाम होने चाहिए जिस तरह डिप्टी कमिश्नर ने एकदम आज लिया है? जी हाँ, हम चाहते हैं जी। क्या मतलब जो मतलब और भी लोग आए यहाँ पर, मतलब यहाँ का नज़ारा देखें, बहुत ही मतलब खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। हम बाकी फ्रेंड्स से, बाकी मतलब पीपल से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इतना मजा मतलब बाहर नहीं, इतना मतलब यहाँ मतलब टीपी में है, आप आए और देखिए यहाँ का लुत्फ उठाएं। लाल चौक श्रीनगर की मशहूर आफ्ताब मार्केट में 25 दुकानों को एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने कब्जे में लेकर मुहरबंद कर दिया। बताया जा रहा है कि ये गुंदा सिंह की मुहाजिर जमीन है। दुकानदारों ने तीसरे फरीक को किराए पर दिया है। उन्हें इंतजामिया ने मुकर्रर वक्त में जायदाद खाली करने का नोटिस दिया था। 16 साल में इन्होंने ये नहीं बताया कि ये जमीन हमारी है, तब म्युनिसिपैलिटी नहीं बनाती, ठीक है, तब ये आर्ग्यू नहीं कर रहे। आज ये 50 साल के बाद बोल रहे हैं ये हमारी जमीन है। इसमें ड्यूकाव साहब इसकी वो केस बना रहे हैं। बाकी को क्यों लग रहा है फिर सील क्यों किया गया है? वो इनसे पूछिए, इनको मालूम है कि हमारे को, हम सुबह आते हैं, दुकान खोलते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं।
मेरे 7 साल के 2 बच्चे हैं। मैं आपके सामने ये आज कह रहा हूँ कि अगर ड्यू काम डीसी साहब इसने कोई नहीं लिया, एक्शन कोई नहीं लिया, तीसरे दिन मैं अपने बीवी बच्चों को, 2 बच्चे हैं मेरे 7 साल के, मैं पेट्रोल छिड़क के उनका आग लगा दूंगा, क्योंकि शाम को बच्चे को रोटी होनी चाहिए। यहाँ पर आज 25 दुकानों को सील करके एडमिनिस्ट्रेशन ने टेक ओवर कर लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दुकानों को सील किया गया है। इसमें 25 दुकानें हैं। यहाँ पर आप एडमिनिस्ट्रेशन का साइन स्टैंप देख सकते हैं। ये देखिए डेट आज का है। आज ये दुकानें सील की गई और बताया ये जा रहा है कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो लैंड है, ये गेंडा सिंह का है, जो कि अभी चंडीगढ़ में रहते हैं। और जो रेंट ये दुकानदार दे रहे हैं, ये रेंट म्यूनसिपलिटी यानी थर्ड पार्टी को ये रेंट दे रहे हैं और गेंडा सिंह को वो रेंट नहीं पहुंच रहा है। और आज एडमिनिस्ट्रेशन ने आके ये तमाम दुकानें सील की है। बताया ये जाता है कि ये 5 कनाल का लैंड है, जिसमें से 1.3 के आसपास गेंडा सिंह ने बेचा था और बाकी के बचे अभी भी गेंडा सिंह के ही है। और आज एडमिनिस्ट्रेशन ने ये टेक ओवर कर लिया है। इसको लेके पर जो शॉपकीपर्स है वो काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पर भीड़ मौजूद है। यहाँ पर बताया ये भी जाता है कि ये जो दुकानदार है, 25 दुकानदारों की लगभग 100 फैमिलीज इन दुकानों पर पलती है। यहाँ पर तहसीलदार खुद आए थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स के साथ साथ यहाँ पर पुलिस ऑफिशियल्स भी आ पहुंचे थे। न्यूज़ 18 के लिए फेरोजवानी के साथ फजा ज़ैनब। बजट को लेकर कश्मीर के लोगों ने खुशी का इजहार किया है, वहीं बाज़ खवातीन ने नाराजगी जाहिर की। बजट में हुनरमंदी की तरक्की, रोजगार के मौके पैदा करने, सयाहत को फरोग देने, ज़राअत को सराहा गया। खवातीन का कहना है कि LPG गैस, सोने के जेवरात और खासतौर पर खवातीन के हिफ्ज़ान सेहत के लिए जरूरी चीजों की महंगाई को कम किया जाए। अगर हम फीमेल हाइजीन की बात करें, सैनिटरी पैड्स की बात करें, which is a basic need, which is a part and parcel of each and every female, and she has to use per month. तो लेकिन उन पे भी हम देख रहे हैं दिन ब दिन उनके भी रेट्स हाई होते जा रहे हैं और बहुत सारी फीमेल्स इस वजह से उनको खरीद ही नहीं पाती हैं। और इतना ही नहीं, डिज़ास्टर तो ये है कि उससे फिर जो आगे हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं वो भी एक फ़ीमेल को काफ़ी परेशान करते हैं। बजट के आने के बाद हमें तो नहीं लग रहा कि वुमेंस के लिए ऐसा है। हाँ ठीक है, स्किल डेवलपमेंट पे काफ़ी ज़्यादा, एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस किया गया है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे ठीक है, वो भी हैं, वो भी बेसिक नीड्स हैं, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है थ्रू आउट द इंडिया और पर्टिकुलरली इन कश्मीर। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बीइंग ए फीमेल, अगर मैं बोलूँ तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि हमारे रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि ग्रोसरी को ही ले लीजिए, कुकिंग ऑयल्स हैं, बाकी सारे, अगर हम ग्रोसरी की ही बात करें